In today's lecture, we will discuss the remaining parts of solid dosage form, that is weighing techniques. In the previous lecture, already we have to learn that is the introduction, definition of powder, classification of powder, after that mixing method of powder, then next is डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर और इन्वॉल्विंग स्पेशल प्रॉब्लम. ओके, ये सब हमने फर्स्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था कि पाउडर के क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मिक्सिंग ऑफ पाउडर. तो देयर इज लास्ट पॉइंट रिमेनिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज वेइंग टेक्निक्स. व्हाट इज द वेइंग टेक्निक एंड फॉलोइंग dispensing balance we have to learn in today's lecture. Weighing is one of the most important step which is needed in almost all type of pharmaceutical operation. Okay, the success of all these operation in a pharmacy depends on proper weighing, which is possible only if there is through knowledge of balance, its principle and its care and proper use we have to study it in this lecture. Okay, during compounding and dispensing of medicines, weighing is done on a dispensing balance. Obviously all of you knows what is dispensing balance or weighing balance. Dispensing balance consists of simple light but rigid equal armed horizontal beam with central and terminal knife edge of steel which work it edged or steel bearing. Two pans are suspended from a terminal knife edge, one pan of which is made of glass and is used for placing the material for weighing. Okay, and the other pan is made of metal and used for keeping the weight on it. When a load is placed in a pan, the beam turns about the central fulcrum and deflection from the horizontal is indicated by the movement of pointer fixed below the center of beam. Okay, some of the following technique should be followed while weighing the material. So let's say first weighing techniques. Place the balance in a convenient position for use. The area should be well lit and free from dust. Okay, जो बैलेंस होता है कन्वीनियंट पोजीशन में हमको रखना है. द एरिया विच इज़ वेल लाइट के अंदर वो एरिया होना चाहिए. डिस्पेंसिंग बैलेंस जहाँ हम वेइंग करेंगे तो लाइट के अंदर वो एरिया होना चाहिए और विच इज़ फ्री फ्रॉम डस्ट. ओके, देन नेक्स्ट इज एडजस्ट द लेवल ऑफ बैलेंस. जो बैलेंस है उसकी लेवल एडजस्ट करनी है हमको. यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं डिस्पेंसिंग बैलेंस. यहाँ पर इन्होंने एक सेंट्रल नाइफ एज है जो कि दोनों जो पैन होती है उसका जो लेवल होती है, जो बैलेंस कंट्रोल करती है, सेंटर नाइफ एज. टर्मिनल नाइफ एज होती है जो कि बैलेंस को पकड़ती है. ओके, देन नेक्स्ट इज metal pan and glass pan. Metal pan is used for weighing or keeping material weight. Okay, then glass pan is used for material weighing, for metal weight. Okay, then there is a drawer. Okay, drawer for keeping or drawing. Drawer is used for keeping weight, measure material. Okay, then next is clean the balance and pan with dry duster before use. क्लीन बैलेंस जो होता है हमें क्लीन करना पड़ेगा पहले, यूज़ करने से पहले उसको यूज़ करेंगे, उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे. सॉरी, प्लेस नेक्स्ट इज प्लेस द क्लीन वाइट शीट ऑफ अ पेपर अंडर ईच पैन एंड रिप्लेस इट फ्रीक्वेंटली टू प्रोटेक्ट द बैलेंस फ्रॉम कोरोजन. ओके, जब भी हमें क्या करेंगे, वे करने से पहले क्या करेंगे, वाइट जो पेपर शीट होता है उसे प्लेस करेंगे. ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि करोजन जो होता है उस मेटल प्लान की, जो मेटल का जो पैन होता है उसके ऊपर जो करोजन होता है उससे हम अवॉइड कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ वाइट पेपर शीट. ओके, देन नेक्स्ट इज प्लेस द रिक्वायर्ड वेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड पैन with the help of forceps so that sweat and grease from the hands may not make weight inaccurate. तो लेफ्ट हैंड साइड का जो साइड का जो पैन होता है उसको हम क्लीन करके फोर्सेप से पकड़कर जो वेट्स होते हैं जो कि 50 मिलीग्राम, 1 kg, 5 मिलीग्राम, 50 ग्राम. ओके, जो वेट हमें उसके अंदर रखना होता है उसको स्पैचुला और फोर्सेप से पकड़कर हम रखेंगे, ताकि जैसे हम हाथ से अगर रखेंगे तो वेट और ग्रीस
चिकट किंवा काहीतरी घाम वगैरे त्याला लागेल आणि इनॲक्युरेट वेईंग होईल. त्यासाठी वे प्रॉपर किंवा ॲप्रोप्रिएट वे होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला और फोर्सेप्स से पकड़ कर वेट हमें लेफ्ट हैंड साइड का जो पैन होता है वहाँ पर वेट रखना है. ओके, जो कि 50, 20, 1 kg मिलीग्राम का और ग्राम का होता है वो. ओके, देन क्लोज द ड्रॉवर of the balance in order to prevent spillage of the powder and the weights lying in the drawer. Okay, जो ड्रॉवर होता है उसको क्लोज करना है हमको. क्यों क्लोज करना है? टू प्रिवेंट द स्पिलेज ऑफ पाउडर, जो कि पाउडर का नीचे गिरेगा और नीचे गिरकर वो ड्रॉवर के अंदर जाएगा. वो ड्रॉवर की जगह होती है, उसके अंदर क्या रखते हैं हम, जो वेट जो मेजर करते हैं, जो वेट मेजर करते हैं हम उसके अंदर वो रखते हैं. तो उसके अंदर वो पाउडर गिर जाएगा, इसलिए प्रॉपर क्या करेंगे, उसको क्लोज करेंगे. और जो बैलेंस होता है उसको प्रॉपर करेंगे हम, इसलिए उसको क्लोज करना होता है हमको. पहले यूज़ करना, पहले वेइंग करने से पहले उसको क्लोज करेंगे. ओके, रिमूव द बॉटल ऑफ मेडिकामेंट फ्रॉम द शेल्फ एंड चेक इट्स लेबल फॉर द करेक्ट इंग्रेडिएंट मेंशन्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन. जो बॉटल और जो कंटेनर हम यूज़ करने हैं, जिसके अंदर पाउडर वे करके हमें उसके अंदर जो कंटेनर में डालना है उसका लेबल चेक करेंगे. और लेबल चेक करके जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर पाउडर जो इंग्रेडिएंट पता है उसको हमें वे करना है. तो जो बॉटल होता है, कंटेनर होता है, उसका लेबल चेक करके ही हमको उसके अंदर क्या करना है, कंटेनर के अंदर हमको प्रॉपर पाउडर मटेरियल इंग्रेडिएंट उसके अंदर ऐड करना होता है. ओके, होल्ड द बॉटल इन द लेफ्ट हैंड with the label in a upper position so that it is visible during weighing. जो बॉटल होती है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें होल्ड करना है अपर पोजीशन में, सो दैट इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग वेइंग करने में हमें आसानी और विजिबल हो जाए. ओके, ऐड और रिमूव द मेडिकामेंट टू द राइट हैंड पैन. राइट हैंड पैन का जो साइड होते हैं वहाँ पर हमें हमारा मेडिकामेंट्स और पाउडर जो भी हमें वे करना है. ओके, विद द हेल्प ऑफ हमें उसके अंदर स्पैचुला और फोर्सेप्स से क्या करेंगे, पाउडर जो मेडिकामेंट होते हैं उसके अंदर ऐड करेंगे. और क्या करेंगे, अंटिल द पॉइंट उसको मेज वेइंग करेंगे अंटिल द पॉइंटर रिटर्न टू द नल पॉइंट. जो पॉइंटर होता है नल पॉइंट का, जो सेंटर नाइफ होता है, वो इक्वल तब तक नहीं होता, दोनों की क्वांटिटी वे नहीं होती, तब तक उसे हमें मेडिकामेंट उसके अंदर और पाउडर उसके अंदर पैन के अंदर ऐड करना है. इन अ फार्मेसी द राइट हैंड पैन इज़ यूज्ड फॉर द मटेरियल बीइंग वेड. जो राइट हैंड साइड का जो पैन होता है वो वेइंग करने के लिए, मटेरियल वे करने के लिए यूज़ किया जाता है. व्हेन द वेइंग इज कंप्लीटेड पुट द बैलेंस बीम अगेन इन अ फिक्स्ड पोजीशन. जैसे भी हमारा वेइंग कंप्लीट होता है तो बैलेंस बीम होता है उसके फिक्स्ड पोजीशन में रखना चाहिए हमको. ओके, द नेक्स्ट इज ट्रांसफर द वेड मटेरियल. ट्रांसफर द वेड मटेरियल इन अ कंटेनर और ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर एज पर रिक्वायरमेंट. ओके, जैसे भी हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे जैसे भी हम ड्रग का, पाउडर का, मटेरियल का कंटेनर के अंदर, उसके बाद क्या करेंगे, जो वेट होता है, वेट्स जो कि हमने रखा था 5 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम वेट जो मेजर करते हैं उसको निकालेंगे और फोर्सेप्स से और स्पैचुला से उससे निकाल कर ड्रॉअर के अंदर केयरफुली रख देंगे क्लीन करके. ओके, क्लोज द बॉटल्स एंड अगेन चेक इट्स लेबल. बॉटल जो भी हमारा बॉटल होता है उसको हम कंटेनर के अंदर हमारा पाउडर इंग्रेडिएंट जो हम डालें उसके अंदर उसको क्लोज करेंगे. रिटर्न द बॉटल टू द शेल्फ एट अ टाइम ऑफ वेइंग. जैसे उसको बॉटल को रिटर्न करेंगे वेइंग करने के लिए. फिर से उसको जैसा पूरा हमारा पैकिंग हो गया है, वेइंग और पैकिंग हो गया तो उसको क्या करेंगे, फिर से वे करेंगे और साइड बाय साइड एक उसको वे करेंगे और टेबल के ऊपर रखते जाएंगे. पूरा टोटली एक साथ उसको वे नहीं करेंगे, एक वे करके साइड में रखते जाएंगे. ओके, ये थे हमारे वेइंग टेक्निक्स. अब कुछ पॉसिबल एरर्स, कुछ अडथळा जेणे कसं आपल्याला म्हणता येईल काहीतरी अडथळा किंवा बॅरियर निर्माण होतात वेइंग करना, तर ते वेइंग करताना तर ते काय आहे ते बघा. ड्युरिंग द वेइंग देर कॅन बी चान्सेस ऑफ एरर विच मे ऑकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. द बैलेंस इज़ नॉट प्रॉपरली लेवल्ड. बैलेंस को हमें बार बार लेवल करना पड़ता है. द रेस्ट पॉइंट ऑफ द बैलेंस इज़ नॉट करेक्ट. रेस्ट जो पॉइंट होता है बैलेंस का करेक्ट नहीं होता वो. द टू पैन्स ऑफ द बैलेंस आर अनइक्वल वेट. दोनों पैन का जो वेट होता है अनइक्वल होता है. एक का जो पैन है मेटल का है, दूसरा ग्लास का है, तो अनइक्वल वेट होता है दोनों का.
द सरफेस ऑफ पेन आर रफ, जो सरफेस होता है पेन का रफ होता है. द मेटल इज वेड डायरेक्टली ऑन द पेन, जो मटेरियल होता है हमें डायरेक्टली वे करना होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं वाइट शीट पेपर का यूज़ करते हैं, जिससे कि कोरोजन होता है तो उसे हम अवॉइड करते हैं. वो एक उसका, अगर नहीं करेंगे वाइट शीट पेपर तो वैसे ही यूज़ करेंगे तो करोजन हो जाएगा उस पेन का. द मटेरियल इज वेड इवन थ्रू द पेन आर स्टिल ऑसिलेटिंग, जो जब भी हम वे भी करते हैं तो वो पेन जो होता है ऑसिलेटिंग मतलब ऊपर नीचे होता है वो पेन की पोजीशन. वेट्स आर हैंडलर विथ हैंड एंड हॉट विथ फोर्सेप्स. वेट जो हमको वे करना होता है वो फोर्सेप्स से और स्पैचुला से ही हमको वे करना होता है. ये क्या है सम ऑफ दी पॉसिबल एरर इन वेट्स, जो वेइंग करते टाइम पॉसिबल क्या एरर्स निर्माण होतात त्याच्यामध्ये हे इथं सांगितलेलं आहे त्यांनी. देन नेक्स्ट इज मिनिमम वेएबल अमाउंट. जैसे कि हमने पहले भी एक लेक्चर में देखा था कि जो हम मिनिमम जो अमाउंट होता है वो 100 मिलीग्राम ही होना होता है. अगर उससे नीचे होगा तो हम उसे वे नहीं कर सकेंगे. ओके, पता है कि जो मिनिमम वेएबल अमाउंट होता है जिसे हम वेइंग करना होता है तो 100 मिलीग्राम ही होना है. 100 मिलीग्राम से ऊपर ही हम हमारा पाउडर इंग्रेडिएंट हमारा जो मेडिकामेंट है उसको वे कर सकते हैं. उसके अगर नीचे होगा तो हम उसे वे नहीं कर सकते. ओके, हमारा जो पाउडर है 100 मिलीग्राम से ऊपर ही होना चाहिए. ओके, ये मिनिमम वेएबल अमाउंट जो है 100 मिलीग्राम है, उससे नीचे हम नहीं कर सकते. उससे ऊपर ही करेंगे, उससे नीचे नहीं करेंगे. ओके, देन फर्स्ट से एक बार देख लेते हैं वेइंग टेक्निक्स. वेइंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप which is needed for almost all type of pharmaceutical operation. Some of the technique is, first is place the balance in a convenient position for use. The area should be well lit and free from dust. Adjust the level of balance. Clean the balance and pans with a dryer duster before use. Okay, place a clean white sheet paper under each pan and replace it frequently to protect the balance from corrosion. Place the required weight on the left hand pan with the help of forceps so that sweat and grease from the hands may not make weight inaccurate. Close the drawer of the balance in order to prevent spillage of powder on the weights laying in the drawer. Remove the bottle of medicament from the shelf and check its label for the correct ingredient mentioned in the prescription. Hold the bottle in the left hand with the label in upper position so that it is visible during weighing. Add or remove the medicament. So right hand pan with the help of spatula until the pointer returns to the null point. In the pharmacy, the right hand pan is used for the material being weighed. When the weighing is completed, put the balance beam again in a fixed position. Okay, transfer the weighed material in a container or in a piece of a paper as a requirement. Return the weight on the drawer with the forceps and carefully clean the balance pan and spatula. Close the bottles again, check the label. Return the bottles to shelf at the time of weighing and same should be replaced immediately after weighing the material from it. Then the next bottle should be removed and weigh the material. Okay, this will help to avoid the mistake. Okay, some of the possible errors in weighing. First is balance is not properly leveled. The rest point of the balance is not correct. The two pans of the balance are unequal weight. The surface of pan are rough. The material is weighed directly on the pan. The material is weighed even through the pan are still oscillating. The weights are handled with the hand and not with the forceps. Okay, minimum weighable amount is 100 milligram. Okay, तो आपने इसके जैसे भी हमारा ये इस लेक्चर का एक पॉइंट था हमने स्टडी कर लिए थे वेइंग टेक्निक्स बैलेंस. ओके, तो आपने इसके नोट्स भी निकालने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना है. इसको साइड बाय साइड नोट्स निकालते रहने हैं आपको. जैसे कि हमारा 4th चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है. हमने फर्स्ट देख लेते प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड इनकम्पैटिबिलिटी, देन थर्ड पोस्टोलॉजी, देन 4th इज सॉलिड डोसेज फॉर्म दैट इज पाउडर विच इज इंक्लूडेड इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन. After that, classification, advantage, disadvantage, mixing method. Okay, all of these included in solid dosage form that is powder. Okay, so here we have to completed the some today's point that is weighing technique. Okay, the remaining some of the small 2 points in this chapter we will discuss in next lecture. Okay, thank you.